ఢిల్లీలో మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. And where I created so many memories. And here, while starting from my native place Chittoor, there was some fear inside me, like the lifestyle there was very new, and the climate, food, culture, tradition, whatever it is, very new to us. But after reaching Harshil Valley in Uttarkashi, the interaction with the people and the warm welcoming of the officials was completely changed my perspective. And we also interacted with ITBP officials also. So here we interacted with them, and I saw their discipline, humility, and dedication, commitment towards the nation, which made me proud to be an Indian, sir. And here we just met a local people, like in Harshil Valley, though such a cute and sweet people they are. They welcomed with a lot of they took care and shown love to us, and they just gave me an aloo paratha, which was very new to us, and we just saw new type of foods there, and we had different cultural activities also, sir. At the same time, and we had a convo with some ITP My Bharat officials there, where they took care of us, and we stayed in one homestay in Mukwa, where the birthplace of Ganga Ma. The interaction with them, people staying home, that was very nice to us. It touched my heart, sir. Just in these 7 days, we felt like I am staying in my home only. भव्या गारो, पिछले साल मार्च में ही मैं उत्तराखंड के मुखवा गांव गया था. Oh. और अब तो आप देख करके आई हो. सचमुच में बहुत ही खूबसूरत गांव है. अच्छा, मैं जानना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने गांवों में अपनी उम्र के युवाओं के साथ मुलाकात की? उनसे किस तरह की बातें, उनकी क्या जिज्ञासाएं थी, क्या जानना चाहते थे? Yes, sir. Before that, I want to share that one thing in this beautiful part of this program was we met different young people from different states. We spoke different languages and came from different culture. But within few days, we became close friends and like a family. Here we came as a strangers, but left as a one family, sir. That is the real vibe of India. And at the same time, here people often say India is diverse. But in this journey, I really felt it, sir. And coming to the youth in Harshil Valley, we met different people through My Bharat registration drive. Here they interacted with us and they treated me like their own sisters, sir. And they just they shown love to me and just give some flowers to me also. And we just interact with them, and they asked me that how you came here and what was the process. And I explained about My Bharat to them, because I have personal experience from my friends, sir, because we visited so many places in these 7 days of program, and I shared the pictures, beautiful landscape of Neelang and Jadung Valley, beautiful apple orchards. I shared the pictures in my Instagram, and it has huge response from my friends. And here that was created major FOMO from, like they started fear of missing out and started like, how you went? And I just explained about My Bharat, and someone said, like how lucky you are, and said, I am so jealous of you, Bhavya. You left us without us. Like that, the people are messaging me, and I said, I just shared the link to you, but you are not showing interest. But now they are after this thing happened, they just logging into My Bharat also and said, next time I will came with you, sir. This is the interaction we had with youth and my friends also, sir. आंध्र में तो ठंड होती नहीं है, वहां तो ठंड बहुत होगी. उस ठंड में कैसे रहना हो गया? इट मस्ट बी वेरी कोल्ड देयर. और दूसरा, वहां सूरज बहुत जल्दी निकलता है, सनराइज बहुत जल्दी होता है. तो कैसे मैनेज कर रही थी आप? Yes, sir. We are the people living in 30 to 40 degree of Celsius, but here in Harshil Valley it was 5 degrees Celsius, sir. We just feel there was a little bit fear inside me. How are we gonna survive there? And after reaching that, but some of the like My Bharat officials give some kit to us to like jacket, whatever it is, and there was the different type of clothes was there, sir, to wear. And but it's not like there is not that much different
because there is some bed sheets and cloths which was made by woolen, and also visited some handlooming places where the woolen crafts did happen. It was such a great thing, and we just wear gloves, caps, socks. What we just became like a one army man, like jacket full of green color jacket and full of gloves and trekking shoes. Whatever it is, it made us so warm, sir. भव्य गारू, आपके हिसाब से उन लोगों का लाइफस्टाइल आप लोगों से कैसे अलग था? आपने क्या ऑब्जर्व किया अबाउट देयर लाइफस्टाइल? Yes, sir. So here we are the people. We feel sad for little things, but after the 7 days program, here we just visited different villages like Mukhwa, Dharali, Bhagori. We interacted with the people. They are so humble and down to earth, and they just shown love, care, and with a smile. Always they are smiling like that. And we visited Dharali also, where the landslide occurs. And I interacted with one of the people. Like, it was very hard to live here, right? How you are living, like it was happening, landslide was continuously happening, right? So how you are staying here, like that I asked it. They just answered me with a smile. It will happen, but if we will go from here. It was a native place of us. It was the birthplace of us. If we leave, then who will stay here? Like that they answered. At the time, I realized that how people are so confident here. There are hardships. So many hardships are there. So many things are happening, but they are staying here with lot of confidence. That's the thing I learned from them, sir. अच्छा, वहां के लोगों का डांस बहुत स्लो होता है और बहुत रिदमेटिक होता है. आपने डांस वगैरह सीखा क्या? డాన్స్ స్లో అక్కడికి డాన్స్ చాలా స్లో ఉంటుంది, రిథమ్ ఉంటుంది. Yes, sir. The dance was very slow, and in our last day we had cultural activities also. Here we saw some of the cultural activities. The Gadwali song they played, and some of like they danced for that. It was like slow motion. First we felt like why these people are just moving like that. After that we sing with rhythm. It was feel like very good dance. In our state we had like and I'll say in Telugu it was a Natu. Like full we will dance with full of josh, and we just get tired. But there it was slow motion with a rhythm, sir, which felt like meditation and peaceful thing. We just felt like we just went to dream, and we just seeing like that only. There is no that much hard and not like that, and just we are like dreaming and seeing them. They are just dancing like with a slow motion. We are also dancing with like that. भव्या गारू, आपसे बात करके ये भावना और सशक्त हुई है कि मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है. The Yes. way you have upheld the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत will inspire others. अच्छी बात यह है कि आपने खूब मौज मस्ती की. सही में आपकी रील्स देखकर तो आपके आंध्र प्रदेश वाले दोस्तों फोमो में आ गए होंगे. ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे. बहुत बहुत बधाई. चलो अब और किसी से बात करते हैं. किससे बात करनी है अब? बहुत धन्यवाद भव्यश्री जी. अब मेरा अनुरोध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से हमारे साथ जुड़ी माय भारत वॉलंटियर सयंतिका मिस्त्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें. Namaskar to Honorable Prime Minister Sir. My name is Shayantika, a proud My Bharat volunteer from the very beautiful Andaman and Nicobar Islands. सयंतिका, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे लगता है आप यंगेस्ट वन दिखती हो. सबसे छोटी हो आप. I am 21. अच्छा सयंतिका, आपके विषय में बताइए. और दूसरा, आप किस गांव में गई, कैसे गई, कितना कठिन था वहां पहुंचना? जी सर.
सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने माई भारत पोर्टल जैसे एक वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में सोचा, जिसमें मेरे जैसे 2.5 करोड़ युवाओं को मौका मिला कि वो खुद भारत की, अपने देश की आवाज बन सके। और इसी के अंतर्गत इस साल हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत मुझे मौका मिला बॉर्डर विलेजेस में जाने का, और मुझे मौका मिला बहुत ही खूबसूरत मान विलेज में जाने का जो लद्दाख में है। सर 0 फीट से अचानक 17,000 फीट जाना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था, और वहां की क्लाइमेट कंडीशन भी हमसे बहुत अलग और बहुत हार्श थी, और हमें एक्लिमेटाइजेशन के लिए 5 दिन दिया गया था, और एक्लिमेटाइजेशन के पहले दिन मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, पर माई भारत की टीम ने, जी सर, पर माई भारत की टीम ने और आईटीबीपी के जवानों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। और इसी में से मैं एक छोटा दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बीमार हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण, तब मुझे आईटीबीपी के हॉस्पिटल लेकर जाया गया 5th बटालियन से। तब सर मैंने वहां डॉक्टर को, आईटीबीपी के डॉक्टर्स को कॉन्वर्सेशन करते हुए सुना अपने ही जवानों से कि हम आपकी बाद में चेकअप करेंगे, पहले हमें इस बेटी को ठीक करना है जो हमारी मेहमान बनकर आई है। इससे मुझे पता चला कि हमारे आईटीबीपी के जवान ना सिर्फ हमारी बॉर्डर की रक्षा करना जानते हैं, बल्कि उनके मन में उनके देशवासियों के लिए भी कितना प्यार और कितना केयर है। सयंतिका, आपने अंडमान निकोबार से लद्दाख तक की यात्रा पूरी की। जी। एक द्वीप से 17,000 फीट तक की यात्रा का अनुभव, एक प्रकार से जमीन से शिखर तक जाना, आपके लिए अंडमान का जीवन, वहां के लोगों की कठिनाइयां, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया? सर मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहां रह रही हूँ वहां डेली लाइफ कितना आसान है, और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, लोग एयर प्रेशर की वजह से, और वहां जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहां पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सर इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट की चिंता तो हमें थी ही, पर लद्दाख जाने से पहले, बॉर्डर विलेजेस जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि वहां पे इंटरनेट अच्छी नहीं मिलेगी, वहां सड़कें अच्छी नहीं होगी, तो हमने उस तरह से तैयारी कर हम बॉर्डर विलेजेस में गए थे। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे कैश दे दिया था कि वहां पे जरूर कैश की जरूरत होगी क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं है तो यूपीआई वहां नहीं चलेगी, पर वहां जाकर मैं आश्चर्यचकित थी देखकर कि उन बॉर्डर विलेजेस को, जिन्हें लोग लास्ट विलेज कहते हैं, वहां पर सिर्फ इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल रही थी, और हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहां पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहां आपने यूपीआई किया? जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया। वहां के लोग यूपीआई के जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, हमारे ही जैसा वो भी यूपीआई का इस्तेमाल, क्यूआर कोड रखते हैं, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। तो फिर तो आपको वाईफाई मिल गया, तो फिर तो आप अपने में ही खो ही रही होगी। बिल्कुल नहीं सर, मैं वैसे उतना फोन देखती नहीं हूँ, और वहाँ के वादियों में मैं तो बिल्कुल खोस ही गई थी, वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों के साथ। ज्यादातर मैंने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, और वहाँ के बच्चों के नाम भी सर बहुत प्यारे प्यारे और यूनिक से थे। मैं शेयर करूंगी, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, गास्केट, डिस्केट, डोलकर, नामयाल, तेंजिंग, ये सारे मेरे वहाँ बच्चे दोस्तों के नाम हैं जो मैंने बॉर्डर विलेजेस में बनाए। उन बच्चों के मन में सवाल क्या था? पूछते होंगे तुम ये समुद्र कैसा होता है, तुम अंडमान निकोबार से आई हो? जी सर, वो बच्चे जानना चाहते थे कि हम कहाँ से आए हैं। सर जब मैं मान विलेज के प्राइमरी स्कूल में गई थी तब उनके क्लास में, उनका क्लास बहुत सुंदर था, प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बने हुए थे दीवार पे, और उसमें एक भारत का मैप भी था। पर सर मैंने वहां नोटिस किया कि हमारे अंडमान एंड निकोबार का मैप वहां में नहीं था, तो मैं उन्हें दिखा नहीं पा रही थी कि देखो यहाँ में अंडमान होता है। फिर मैंने उन्हें समझाया ये जो यहाँ में समुंदर है भारत के नीचे, यहाँ में हमारा अंडमान है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी सर। एक बच्ची को मैंने पूछा कि क्या आप अंडमान आओगे जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो उस बच्ची ने बोला कि
अंडमान आऊंगी मैं, मुझे बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा मुझे पता है, पर मैं अंडमान बड़ी होकर जरूर आऊंगी। तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे सर वहां पर। क्या सयंतिका, क्या आपने सीमावर्ती गांव में, क्योंकि गांव के लोग हर चीज बहुत सामूहिकता से करते हैं, सब मिलजुल के करते हैं, ऐसे कोई अनुभव आए कि जिसमें आप कह सकते हो हाँ, बड़ा एक सामान्य रूप से नीचे हमें बहुत कम दिखता है, शहरों में बहुत कम दिखता है, लेकिन वहां आपको अनुभव आया हो? जी सर, मैंने कई सारी ऐसी चीजें वहां ऑब्जर्व करी जो ये दिखाता है कि वहां की कम्युनिटी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। वहां में सर हमें लकीली एक शादी देखने का मौका मिला, जहां में हमने देखा अनलाइक हमारे सिटीज जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट देकर शादी करवा लेते हैं, होटल बुक करवाकर, वहां के सभी लोग मिलकर खाना बना रहे थे, वही चेयर लगा रहे थे, वही सब कुछ सजा रहे थे। इसके अलावा जहां जो लोकल मोनास्ट्रीज होते हैं उससे भी वहां के लोकल्स काफी कनेक्टेड होते हैं, और उसमें जो भी इवेंट होता है, जो भी उनका होता है रिलीजियस, वो सब मिलजुल कर करते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद तो नहीं देखा पर वहां के नंबरदार से सुना है सर। एक बार एक टावर जब गिर गई थी तब गांव वालों ने किसी अथॉरिटी की वेट किए बिना मोबाइल टावर जी सर जी सर। तो मुझे ये सुनने को मिला कि गांव वालों ने बिना किसी अथॉरिटी के वेट किए खुद ही आपस में ये डिसाइड किया कि वही टावर को खड़ा करेंगे। और बस इतना ही नहीं सर, मुझे तो अंदाजा नहीं है पर शायद कुछ बैटरीज की जरूरत होती है टावर के लिए, और उन लोगों ने साथ मिलकर उन बैटरी के लिए एक वेयर हाउस भी खुद से बनाया मिलकर। अरे वाह। जी सर, तो ये थी वहां के लोगों की कम्युनिटी स्पिरिट, इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सयंतिका, निश्चित तौर पर ये यात्रा आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। जी सर। When you share joy, it multiplies. आप जब अपने घर के लोगों से बातें करें, अपने दोस्तों से बातें करें, स्कूल कॉलेज में शायद इस अनुभवों को शेयर करें, तो इसके विषय में कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इन अनुभवों को एक किताब के रूप में, आर्टिकल के रूप में, और औरों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि देश कितना विशाल है, देश के लोगों की भावना कैसी है। और आपकी यात्रा ने जिस प्रकार से आपको मन को देश के प्रति लगाव पैदा करने वाला, देश का एक अनुभव करने वाला, इन सारी चीजों को आपने शेयर करना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए अब देखते हैं देश के किस हिस्से से हम जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सयंतिका। और अब मेरा अनुरोध है जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर आशीष सोनी जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते आशीष जी। मैं आशीष सोनी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक गर्वित वॉलंटियर हूँ। मैं शक्तिपीठ मां शीतला के पावन धरातल से हम सब के चहेते और हम सब युवाओं के फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। आपको भी प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में युवा की आवाज को महत्व दिया तथा उनके विचारों और सुझावों को भी इंक्लूड किया। यह कोई आम बजट नहीं था, यह बजट युवा भागीदारी और युवा के प्रति आपका विश्वास था। सर आशीष जी, एक तो आपके विषय में बताइए, और दूसरा आपका किस गांव में जाना हुआ? सर, मैं अभी करंटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। सर, मुझे हिमाचल प्रदेश के स्पीति के काजा खास में जाने का मौका मिला। सर, जब मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मुझे हिमाचल में जाना है तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक वक्त था कि हमें किसी से बात करना होता था तो बार बार टेरेस पे जाना पड़ता था, नेटवर्क ही नहीं आते थे। सर, जब मैं स्पीति पहुंचकर 14,000 फीट की ऊंचाई से उन्हें वीडियो कॉल करता हूं तो इनकी आंखों में एक चमक और चेहरे पे आश्चर्य दिखाई देता है। उस समय मुझे लगता है सर
कि माई भारत ने 2 पीढ़ियों को जोड़ दिया है। एक वह पीढ़ी जिसने संघर्ष देखा और एक वह पीढ़ी जो परिवर्तन को देख रही है। तो टेक्नोलॉजी ने हिंदुस्तान के हर कोने तक अपना साम्राज्य बिछा दिया है। यस सर। अच्छा आशीष जी, अगले जी सर, सिक्किम के दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर का आपने कोई उपयोग किया? यस सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस जब सिक्किम पर पहुंचा तो सर मुझे लगा कि लोकेशन आउट ऑफ कवरेज हो गया है, बट यह देश आउट ऑफ कनेक्शन नहीं होता सर। मैंने स्पेशली अपने फ्रेंड प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने बताया कि सर मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप हर दिन युवाओं को एक नया अवसर देते हैं कि जिससे यह युवा विकसित भारत का नेतृत्व कर सके। वहां से मैंने अपने परिवार को, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर और अपने डीएम सर को पत्र लिखा। सर मुझे वहां पे ऐसा फील हुआ कि यह देश मेट्रो एयरपोर्ट से ही नहीं कनेक्टेड है, यह देश उस छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसों से भी कनेक्टेड है जो अपने तिरंगा की तरह अडिग खड़े रहते हैं। सर हिक्किम के पोस्ट ऑफिस से हम देश के किसी कोने में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। सर वहां मुझे बस एक गीत ही याद आ रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आशीष जी, दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में जाना ये अपने आप में जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। क्या आपने वहां खड़े होकर कोई सेल्फी ली, फोटो लिए, उस डाकघर के फोटो अपने दोस्तों को भेजे? आपके जीवन की वो यादगार घटना को आपने कैमरा में कैच किया क्या? सर मैंने बहुत सारी फोटो लिए, रील्स बनाई, ब्लॉग्स भी बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया और माई भारत गवर्नमेंट ने उसको सर रिपोस्ट भी किया है। नहीं, उस डाकघर का? जी सर मैंने लिया। हाँ। बहुत सारे फोटो बनाए सर, ब्लॉग्स बनाए, रील्स बनाई। अच्छा आशीष, जब आपने इस सीमावर्ती गांव में, और वहां भी कहते हैं कि अब तो हर गांव में डिजिटल पेमेंट पहुंच गया है, शायद वहां यूपीआई का भी पेमेंट हुआ होगा, वो भी कभी अनुभव आया क्या? सर और టీవీ బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరో బులెటిన్లో